Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope class 5 you all are fine and doing well at your home. So this is your lesson of computer science and I am your computer teacher. So okay class, as you all know that what we were studying in the previous lesson, can anyone tell me? Sharoz, can you tell me? Yes, we were studying about Macromedia Flash. Okay, so Anas, can now you tell me what is the basic use of using Macromedia Flash, or why we were studying in this class for computer science? Right, we were using Macromedia Flash if you want to create animation create करने के लिए, छोटी छोटी movements show करने के लिए different objects की we were studying Macromedia Flash. Okay, so in this lesson we are going to revise the previous topic. We are not going to study anything new. We are going to revise only the previous topic. So can anyone tell me what topic we were discussing in Macromedia Flash? Huzaifa, can you tell me? Yes, very good. We were studying how we can create guide ball movement in Macromedia Flash. Macromedia Flash में हम guide ball movement किस तरह से show कर सकते हैं. So let's start. First of all, I'm going to start Macromedia Flash. Okay, so now as you can see, मैंने इसको अपनी स्क्रीन पर ओपन कर लिया. So when you will click on Macromedia Flash, so this kind of interface will appear on your screen. Farouk, can you tell me now what I have to do? Yes, right. I have to do here, I want to create Flash document. मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, सो आई हैव टू सिलेक्ट फाइल फ्लैश डॉक्यूमेंट. मैंने इस पर क्लिक कर लिया. नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन क्रिएट बेसिक गाइड मोशन पाथ. बेसिकली इस आज के लेसन में हम करेंगे क्या कि हमने जो पिछले लेसन में परफॉर्म किया था, हमने एक बॉल ड्रॉ की थी एंड देन बॉल ड्रॉ. ओके, सो नाउ क्लास व्हाट वी विल डू. आज के लेसन में हमने करना क्या है, हम बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो कि जिसको हम एक बॉल कंसीडर करेंगे, देन हम उसको एक पाथ दे देंगे सो दैट कि आपकी जो सर्कल है, आपका जो बॉल है, वो एक पाथ के ऊपर मूव करे. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनिमेशन. आपको पता है पेंट प्रोग्राम में आपने काम किया है. सो वी कैन नॉट मूव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स और शेप्स इन पेंट प्रोग्राम. पेंट प्रोग्राम में हम इन ऑब्जेक्ट्स को और शेप्स को मूव नहीं कर सकते. सो हेयर वी विल मूव सर्कल ऑन अ पाथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाइट एरिया where right now my mouse pointer is? Can anyone tell me what is the name of this area where we have to draw different objects? Ali, Farouk, can you tell me? Right, here what we will do, this area is known as your stage, because stage में हमने अपनी हर किस्म की ड्राइंग करनी है, हमने यहाँ पर शेप्स को ड्रॉ करना है. So this area is known as your stage. These are different kind of tools which we will use in your animation. And what is the name of this area? As you can see, there are some numbers like 1, 5, 10, 15. Can anyone tell me what is the name of this area or this bar? Abdul Sabur, can you tell me? Yes, very good. This area is known as your timeline. इस एरिया का नाम है टाइमलाइन. सो टाइमलाइन में बेसिकली हमने शो करना होता है कि हमारी जो एनिमेशन है, जो मूवमेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कितने टाइम के लिए किस जगह पर स्टे करवाना है. सो दिस एरिया इज नोन एज योर टाइमलाइन.
ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ आ सर्कल, और सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम सिंपली उसको मूव करेंगे एक पाथ के ऊपर, और वो जो पाथ होगा वो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह उसको सेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीवन टेल मी if I want to draw a circle, then which tool I should choose? Umar, can you tell me? Right, I have to select the oval tool. Is it clear? And first of all, I can change the background color. Sorry, I can change the color of the shape. मैंने यहाँ से एक कलर चेंज कर लिया. एज यू कैन सी, जैसे आप किसी टूल पर या किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसके पास जितनी भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होगी वो आपको नीचे इस एरिया में शो होगी. सो आई विल चेंज हेयर, आई विल ड्रॉ अ सर्कल हेयर. ओके, सो दिस सर्कल, एज यू कैन सी, द कलर इज चेंज फ्रॉम द आउटर कॉर्नर्स. कलर इसका चेंज है इस वक्त बिकॉज दिस दिस कलर इज़ नोन एज योर ग्रेडियंट, जिसमें आपके पास कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है लाइट मोड से डार्क मोड में या लाइट टोन से डार्क मोड में. सो दिस कलर इज़ नोन एज योर ग्रेडियंट, जो कि एक तरह से चेंज हो रहा है. यहाँ पर अगर आप इसके किनारों पर फोकस करें तो ये आपको डार्क कलर में शो होंगे, और इसी तरह से अगर आप इसके अंदर वाले कॉर्नर पर देखें तो ये आपको थोड़ा लाइट कलर में मिलेगा. सो दिस इज़ नोन एज योर ग्रेडियंट. ओके, सो नाउ इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ गाइड बॉल मूवमेंट, अगर आपने पाथ की मूवमेंट शो करनी है, सो सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट दिस लेयर ऐड मोशन गाइड. अब देखें आपके पास ऐड गाइड जो है वो ऐड हो चुकी है. सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. आप जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी जो लेयर है वो सिलेक्ट नहीं होगी. सो फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लेयर. आप देखें यहाँ पर आपके पास इसका जो फर्स्ट फ्रेम है वो आपको डार्क ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, और जो नीचे वाला है लेयर 1 का वो आपको लाइट कलर में शो हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेयर को सिलेक्ट कर लेना है. इज इट क्लियर? लेयर को सिलेक्ट करने का मतलब है गाइड का मतलब गाइड लेयर. दैट मीन्स कि यहाँ पर अब आपने अपना पाथ ड्रॉ करना है. सो पाथ ड्रॉ करने के लिए सिंपली वी विल सिलेक्ट द पेंसिल टूल एंड आई विल ड्रॉ अ पाथ. आप किसी भी तरह का पाथ ड्रॉ कर दें. ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने पाथ ड्रॉ कर लिया. अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें जो मेरी बॉल है या जो सर्कल है वो इस पाथ के ऊपर मूव करें. सो फॉर दैट पर्पज़ आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द नाउ नेक्स्ट स्टेप? ध्यान, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? राइट, आई हैव टू सेलेक्ट द फ्रेम्स. आपने अपनी दोनों लेयर्स, जो कि इस वक्त लेयर 1 है आपकी बॉल और जो लेयर 2 है वो है आपके पास पाथ, आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है. आप कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर लें, और फ्रेम में भी आपको पता है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी जो सर्कल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पर ज़्यादा देर स्टे करेगी. सो आई विल क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम. कंट्रोल से कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल की को प्रेस की है और नीचे वाले फ्रेम पर क्लिक कर दिया, और आप राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दें. ठीक है, सो इतना सा आपने काम करना है. नाउ यू हैव टू टेल द फर्स्ट पोजीशन. आपने यहाँ से एरो टूल को सिलेक्ट करना है, देन सेंटर में क्लिक करें, और इसके बाद क्या करना है, अब आपने you have to first of all click on this first point and then you have to tell. आपने सर्कल को सेंटर से उठाना है और इसका जो मिड पॉइंट है या जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर प्लेस कर देना है अपने ऑब्जेक्ट को. इज इट क्लियर? प्लेस करने के बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट पर बताना है कि आपकी जो बॉल है वो किस जगह पर होगी. अगेन आपने सर्कल को सेंट्रल पॉइंट से पिक करना है और अपनी इस लाइन के ऊपर, उसके एंडिंग पॉइंट के ऊपर अपने सर्कल को प्लेस कर देना. इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द लास्ट स्टेप? फातिमा, कैन यू टेल मी? फातिमा जाहिद, राइट. सो नाउ द लास्ट स्टेप इज यू हैव टू क्लिक हेयर. आप किसी भी जगह पर क्लिक करें एंड देन यू हैव टू क्लिक क्रिएट मोशन ट्वीन. इज इट क्लियर? सो व्हेन यू विल प्रेस नाउ एंटर, so as you can see this is known as basically your guide path layer, जिसमें आपने अपने ऑब्जेक्ट को
एक पाथ बता दिया और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक पाथ के ऊपर मूव कर रहा है. सो नाउ यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ कंट्रोल एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टेस्ट मूवी. जैसे आप इस टेस्ट मूवी पर क्लिक करेंगे सो एज यू कैन सी कि अब जो सर्कल है वो उस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है जो हमने डिज़ाइन की है. इज इट क्लियर? सो इट्स वेरी सिंपल. सो क्लास, नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस एनिमेशन. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने अपने घर में, और यू हैव टू क्रिएट दिस गाइड लेयर एनिमेशन. So if you find any difficulty in this lesson, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.